Hi, So, Amrut. How are you? Yeah, I'm good. Am I sounding loud and clear? yeah, 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 your voice is perfect, clear. perfect. And Yes, you are Perfect. audible. the lights are okay? I'm Yeah, looking good enough? everything is perfect. Okay. So, I would like to take the pleasure and honor to introduce our great group, FALD. And it's my pleasure to introduce you all to FALD, our cherished reading club, and that stands for Friday Evening Learning and Discussions. FALD was founded by Vasudev 2 years ago with just a small group of 10 members who were united by their love for reading. And since then, we have witnessed remarkable growth. And today, our community boasts 162 members, including 40 active reading enthusiasts who are deeply committed to lifelong learning. And with this, every month, our members embark on a collective journey of exploration, selecting 3 to 4 books that delve into a specific theme or topic. And we come together every Friday evening at 8 p.m. to discuss our insights, engage in meaningful conversations, and learn from one another's perspectives. But it does not stop there. Many of our members also contribute by sharing summaries and key takeaways from books they read on their own, enriching the entire group's experience. Additionally, we host read aloud sessions on Sundays. That is one of my favorite sessions. On Sunday morning, we get up early and we have read aloud session. And I rarely miss that session. I can skip my sleep, but I don't miss that session. I'm really Nice. fond of it. Where members can listen to and reflect on powerful passages from selected words. And actually, Vasudev has designed so creatively all the reading sessions in different ways. Like people who don't like to read at their own, and they read collectively in different ways. Differently designed reading sessions are there. If I talk about myself, I was reading shy, and I started reading books with Pawan Bhattar's reading challenge, but then I skipped. And then Vasudev pulled me. He is not only just arranging the session, he just pulled each and every member who is reading enthusiast to read. And I am one among them. He inspired me so much that I am fond of reading. So thank you, Vasu. Our founder Vasudev plays a pivotal role in keeping the community engaged and vibrant. He regularly initiates polls and discussions that help us stay aligned with our collective goals and keep the momentum going. His dedication is a big part of why FALD has thrived as a community. And the success and growth of FALD have also inspired a new initiative, FALD-Y. This program is designed for the next generation of readers. He is not only inspiring us, for our children also he has designed a program. And where children is 4 to 14, who are the sons and daughters of our FALD members, these young enthusiastic readers now have a space to share their own learnings and key takeaways during bi-monthly sessions where they join along with their parents. It's truly inspiring to see such curiosity and passion for reading in these young minds, and we believe this initiative will help cultivate a lifelong love for books in them. And once again, we extend a warm welcome to Amrut Deshmukh sir and to all of our participants this evening. We are thrilled to have you here and look forward to an evening of enriching discussion. And I will now invite Binal to introduce our esteemed guest to the community. Binal, over to you. Thank you. Thank you. Thank you so much for the warm introduction. Uh, I don't know how to introduce Amrut sir because for me, booklet app is like everything. When we see booklet, we are not there's a emotions attached. We are not only learning, but we are growing with booklet. So there is a book coming in, and at a time we are on the words that whatever we are learning in our lives, it is correlated. And booklet has been a part of our journey since 5 years. 10,000 plus downloads earlier. Now I think it would be more than 1 lakh plus. I'm not sure about.
So Amrut Deshmukh की बात करूँ तो like I'll go Hindi English both because it's a mix of audience. So he has given 3 to 4 TED Talks. Josh Talks hai. He is invited all over India and outside the world. He's one of the best person when it comes to reading book, explaining it in a way that people understands it with a voice modulation and everything. So this is, and he has such a kind heart that now I cannot say he's just a friend of mine, but India का friend है. मतलब आपको कुछ भी जरूरत है, you will Wow. get through him. Like Ghost of India, booklet of India. So like it has so much things, and with a great vision of make India read. He has transformed the life of people from Netflix to booklet. So this is a big change, and I really enjoy this. So this is just coming from the bottom of my heart. I have not prepared anything because I know how you have been dwelling this and how you are determined कि whatever it takes, but yes, you have to give the like a booklet summary every Friday, every Wednesday. How beautifully you are making that happen. Your determination, your willpower shows it all. And that's a big success, and which everybody of us truly enjoy this and learn it. And it's totally a new way. And one more thing, you're always coming up with the new things, like kuch na kuch, like a show, like like a parent of a booklet, so you know what needs, like what the children needs. So all the gamification process, now this IPL ka process, that questionnaire coming in, everything is so beautifully designed. I am really thankful and grateful for having booklet as a part of my life, and everybody over here is so much excited and honored to have you, sir. Thank you so much. Wow. थैंक यू. अभी और तारीफ करते तो मैं लाल लाल हो जाता अभी यहाँ पे. So nice introduction. Thank you so much, Binal. Okay. So, Yeah, yes, sir. just a minute before I give it to you, Amrut. So I have been part of this club. I started the club in 2022, and we have been doing a lot of things. And one of the thing is reading booklet. What I say to people is, if you are not able to read the whole book, at least read the booklet of that particular book. And we have certain members in our club, like Hemant Kumar is there. I think I have put it in the message that I think there is no booklet that is not read by him. He reads each and everything. Then Rashmi and Shivani are there. They have crossed, as far as I know, 200 plus, but today's figure may be much more than that. So it's become a habit and a ritual to them that they don't complete the day without completing that day's booklet, at least one part of it. And this I have not heard from them. I have seen them practicing that. I myself have done 140. I am at IQ of 140, but I really pick up the booklet which I need, not everything that is found. So it's not a ritual for me, but still I could reach 140. So that's about our club and what we do. Now it's all over to you. Thank you. Nice. Thank you so much. Accepting the invitation. My pleasure. Yeah. So, Binal, how do we get started? Do you want me to? Okay. So, like we are getting started with the compounding effect as a first day. So, you are into books from long time. So, what makes you so much dedicated and productive all the time? To give that much importance to the book rather than giving importance to other things. See, I have read some 25 books on time management and productivity. And after reading those 25 books, I have come to realize there is nothing called time management. You can't manage time, man. Time to chalta rahega na. How can you manage time? Something which is moving. It is not in your control, right? It's not, the value of time changes by the amount of focus you put into that time, the amount of attention that you put into that time. That will decide the value of time, right? So it's about attention management and not time management, right? So focus means to say 1,000 no's.
I think we are the most unfortunate generation where we are surrounded with maximum number of distractions. You just have to deal with those distractions. Okay, no, I don't have Netflix. I don't have Swiggy in my mobile. I don't have Instagram on my mobile. You must be wondering, अरे मैं तो Instagram पे हूँ, मैं तो दिखता हूँ रोज मेरा वीडियो जाता है तो I don't have it on my mobile. It's what I'm saying. I check YouTube by opening my laptop, right? I check my Instagram by opening my laptop and typing in Instagram.com. It's hell lot of difference because then the laptop doesn't go into my pocket when I step out of my house. See, because see, TV was also distraction, but TV never came with us inside the pocket when we are with the dentist, when we are in the railway station, when we are in the library. Got it? अभी क्या हो रहा है? We are carrying all those distractions as an integral part of our body in the form of this stupid instrument, you know. This ये जो है. So I think say no to everything. Say music. Music is such a beautiful thing, right? But too much of music. I'm seeing too much of music. सुबह नाश्ता करते वक्त म्यूजिक चलता है घर पे, just because it is there in unlimited supply and for free. Both the things are so dangerous. Free and unlimited supply. We don't know where to stop. वही पहले वो सीडी 50 रुपए का सीडी उसमें रिकॉर्ड करो. There was a lot of effort and money involved. अभी these guys are so smart, the silicon वाले guys, they know चलो फ्री में देंगे तो उनको वो ज्यादा देखेंगे, and they are making money. We all know that. Yeah, it is free to us. So I think it's productivity is about keeping away the distractions. Or what works for me is like, what is TDS, tax deducted at source. Source पे अगर वो distraction को cut कर देंगे ना, that's the best way that helps me. मतलब सामने बटर चिकन रखा है और वो खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा. अभी जो भी आप वीगन हो या जैन हो तो कुछ और एग्जांपल ले लो. सामने गुलाब जाम रखा है और मैं खाऊंगा नहीं, ऐसा होगा नहीं मुझसे. तो उसको हटाओ नजरों से. सो आई रिमूव द टीवी फ्रॉम माई हाउस. आई नो सब लोग बवाल करेंगे, अरे घर पे टीवी नहीं है, बच्चे रहते हैं वगैरह. That's the only way I found. This is what worked for me. नहीं तो I was a couch potato watching Kapil Sharma for 5 hours. The entire Sunday used to go in Kapil Sharma. Can you believe Amrut Deshmukh booklet guy watching TV for 5 hours? But the moment TV went out of my house, it got replaced with books. आप मेरे घर पे आए हो, whole house, I call it as booklet house, क्योंकि बुक्स के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको. And I have an open door policy. कोई भी अंदर आ सकता है, ताला नहीं लगाता हूँ मैं, बस रात को सोते वक्त ताला लगाता हूँ घर को. एंड देन पीपल, अरे कैसे कैसे तू डरते नहीं है क्या, तू चोरी वोरी? मतलब नो, बिकॉज रीडर्स डोंट स्टील एंड थीव्स डोंट रीड, सो आई एम सेफ. So I think I have answered your question. Yeah, Binil. Yes, sir. I'll ask one more question. Like, yes, what do you think is the core reason for booklet success? Oh, see, nowadays I've seen हमने कभी SEO नहीं किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड मार्केटिंग. कभी आई हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल रुपी ऑन मार्केटिंग. कैन यू बिलीव दिस? बाय द वे, द नंबर दैट यू गेव वाज highly undervalued, 1 lakh. We are now 75 lakh people as part of booklet community. 75 lakh. And I think this is the old figure. I've stopped checking the number because I'm much beyond numbers now. So, but just to give a fair idea of the scale at which it has gone. And can you believe, no SEO, no Google Analytics. मैंने ऐप में कुछ एनालिटिक्स डाला नहीं है कि आप कौन से स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिताते हो, कौन से लोकेशन पे पढ़ते हो. आई हैव नॉट डन दिस डेलिबरेटली. मैं IT टीम सेज करो करो करो, मैं बोलता हूँ नहीं, जरूरत नहीं है. बस मुझे जो जो बुक भाता है, मुझे एक्साइट करता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट बिनल, आई डोंट मेक समरीज फॉर यू. आपको मैं उल्लू बनाता हूँ आप सबको. मैं समरीज अपने लिए बनाता हूँ. आई डोंट थिंक अबाउट दिस लैक्स ऑफ पीपल, सबको पसंद आएगा कि नहीं. आई जस्ट थिंक, डिड दिस एक्साइट मी? डिड आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस बुक? If the answer is yes, I go for it.
जरा सा भी डाउट आता है, I discard it. So every booklet, every summary that goes into booklet app, I know 5 to 6 books are filtered out. ऐसा नहीं कि हर एक किताब जो मैं पढ़ता हूँ उसका समरी आपके पास आता है, वैसा नहीं है. Nowadays I spend more time on searching a book than reading. क्योंकि अभी इतना बुक्स पढ़ चुका हूँ. I've read till now like 1956 बुक्स हो गए अब तक. 57 अभी मेरे चल रहे हैं, वहां पर पढ़ा है, रात तक हो जाएगा. So I read one book a day at least. So I think no SEO, no analytics, no paid marketing. What I believe is the secret sauce, if you call booklet as a success, although I don't believe in this term called success, is we have stuck to the basic human values. What are those? It's like kindness, generosity, and brutal honesty. जो भी है सच सच बोलेगा, कुछ भी, there shouldn't be any what I am and what I appear to be, उसमें कुछ गैप नहीं होना चाहिए. Although I don't claim it is 100%, वरना महात्मा हो जाएंगे. Right? So generosity is lacking nowadays. कि देखो ना, आपको क्या लगता है कि बुकलेट कोई बड़ा इनोवेशन है क्या? क्या कर रहा हूं मैं? समरी, पैसिव राइटिंग वाज देयर सिंस 6th स्टैंडर्ड. कुछ भी नया नहीं कर रहा, बस उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करना शुरू किया, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐप बना दिया. मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज है. बिनल, जैसे आप कॉलेज में थे तभी आपकी सहेली कल आई नहीं क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, तो आप बोलते थे ना, अरे कल आए नहीं, ठीक है, आप तुमने जो लेक्चर मिस किए ना, मेरे नोट्स ले लो. कितने कितने सहज तरीके से बोलते थे तुम. वही तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे नोट शेयर करो आपके साथ. मार्कुस होल्डिस फरारी, चाणक्य नीति एंड रॉबिन शर्मा. बस आई डिड नॉट, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. आई थिंक दैट हैज वर्कड. And then in return, I've got like 10 times when I never expected. I think these things, humility, generosity, kindness. Can you believe 70 lakh, 75 lakh लोग हैं, not a single ऐसा तीखा गंदा criticism आया नहीं अब तक. Whatever negative feedbacks, और कभी ऐसा होता है, फीडबैक भी इतना स्वीट रहता है ना लोगों का कि अरे अमृत, वो ना ऐप में ना वो ऑडियो का आज चला नहीं, देखो हाँ प्लीज. मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी और को और तकलीफ होगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट फील बैड. हाँ, सो नेगेटिव फीडबैक पे भी इतना प्यार मोहब्बत आता है. ट्रोलिंग तो दूर की बात, एट दिस लेवल ट्रोलिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग. वो तो होता ही नहीं, बिकॉज बुक इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्टर. राइट, गलत लोग आते ही नहीं मेरे लाइफ. एंड आई लव द वे यू इंट्रोड्यूस मी, फ्रेंड ऑफ इंडिया. आई यू मेड माई डे. दिस इज व्हाट आई वांटेड. मुझे नंबर्स कभी दिखे ही नहीं, मुझे दिखे तो बस लोग. और लोग मतलब ये नॉट द फ्लैश एंड ब्लड वाले लोग, बट द पीपल हु हैव सम एडवर्सिटीज, प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. सब दोस्तों के मुझे पर्सनल प्रॉब्लम्स पता है. या दे शेयर ऑल देयर वल्नरेबिलिटी विद मी, जो शायद उन्होंने उनके पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं किया होगा. आई थिंक दिस इज द सीक्रेट सॉस ऑफ सक्सेस. और ये सब मैंने बुक से सीखा है. ये 10 साल पहले मैं नहीं था ऐसे. I was a very egoistic person, very proud of my achievements. या लॉकडाउन में मैंने ऐसे सुबह उठ के मैंने देखा पूरा बुकलेट हाउस रिनोवेट करने से पहले, या पूरा अवार्ड से भरा. एक भी दीवार आपको दिखेगा नहीं. यूथ आइकॉन अवार्ड, टेड टॉक, ये अवार्ड सब मैंने ऐसे दीवारों से सजाया था. और सुबह उठ के मैं दिखता था और उसको 10 मिनट दिखता था. मतलब ये क्या है? Every day when I wake up, I'm seeing all these which are my past achievements. They only go to expand my ego. वो हो गया, वो बात की बात है. Sachin Tendulkar can't even carry forward one single run from his previous match century. He has to start from zero. And why am I carrying all those awards? और पता है मैंने क्या किया? पूरे के पूरे अवार्ड्स, मोमेंटो जो भी थे, पूरा उसको एक बड़े से कुछ 50 बॉक्स हो गए थे. आई डिस्कार्डेड देम. यू विल नॉट सी अ सिंगल अवार्ड सर्टिफिकेट इन माय हाउस एनीमोर. यू विल सी ओनली बुक्स, बिकॉज बुक्स की वजह से वो अवार्ड आया. तो मैं डिस्प्ले क्या करना चाहिए, बुक्स या अवार्ड्स? अवार्ड इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट. अवार्ड इज नॉट एन अचीवमेंट. Achievement is that I read at an amazing speed, which rarely people have, of almost 900 words per minute. That I have read 1,856 books. Yeah, that I have inspired people who used to hate books. एक लड़के का मेरे को फोन आया कि दादा लॉकडाउन में मैंने 4000 मूवीज देखे.
और वेब सीरीज. कैन यू बिलीव 4,000 एडिक्टेड टू नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम. उसके आंखें बोला आंखें से बाहर आने वाले थे, माँ बोलती थी. और कहीं पे तुम्हारा व्हाट्सएप पे देखा फ्री है, डाउनलोड किया, एंड आता फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव बॉट रिच डैड पुअर डैड, एंड मेरा नेटफ्लिक्स का एडिक्शन कम हो गया. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. दिस इज एन अचीवमेंट, राइट? ये टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यूज, यहाँ पे बुलाना वहां पे बुलाना, दोस आर नॉट अचीवमेंट्स, दोस आर जस्ट एक्नॉलेजमेंट्स. या Thank you so much, sir, for this wonderful thing. There's a question from Shreya. You are a chartered accountant. So, what's your turning point to start reading? And what was the first book you read? फर्स्ट बुक ऑफ माई लाइफ, मतलब बचपन में. आई थिंक मेरी माँ अभी जिंदा नहीं है. मेरी फर्स्ट बुक थी शामची आई. इट्स अ मराठी बुक, वेरी फेमस. सानी गुरु जी इज अ वेरी फेमस ऑथर. शी, आई थिंक जितना मुझे याददाश्त है, जब से मैंने होश संभाले, मुझे लगता है शामची आई वाज माय फर्स्ट बुक ऑफ माय लाइफ. But the first self-help book of my life was Rich Dad Poor Dad, which I read after my 10th exams, gifted by my brother. I am a CA. I was a CA. अभी तो CA का कुछ, I'm an outdated CA now. Of course, CA हुआ हूँ मैं. I'm a qualified CA, but now I'm not reading those boring audit books and tax reckoners and accounting standards. I'm reading these amazing books like Morgan Hossel's Psychology of Money and Atomic Habits for You. या सो इन अ वे, मुझे तो जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो काहे का सीए. ऑफ कोर्स आई डोंट रिग्रेट. सीए ने मुझे बहुत नॉलेज दिया. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस दैट आई विल नेवर गो ब्रोक. पीपल आर अमेज्ड. मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी से कॉल आया कि वी वांट का कोई सोशल वेंचर का एक डिपार्टमेंट है, और दे वर अमेज्ड कि तुम सब फ्री में देते हो तो तेरा चलता कैसा है, हाउ डू यू रन द शो, वी वांट टू नो योर मॉडल. मतलब मॉडल कुछ नहीं भाई, आई जस्ट अपील टू द पीपल. सो मेरा ऑनलाइन ये हुआ सेशन उनके साथ. सब गोरे लोग थे और दे हैड टू बेयर माय इंडियन एक्सेंट. बहुत मुश्किल हुआ, पर दिस इज व्हाट पीपल आर टेकिंग नोट ऑफ इट. पुटिंग मनी इज नॉट द ओनली वे टू इंक्रीज द वैल्यू. जैसे यू राइटली सेड ना कि मैंने गेमिफिकेशन किया है, वो की वाला कंसेप्ट हैज बीन अ मास्टर स्ट्रोक. जब मैं इंट्रोड्यूस करा था, मेरे सब दोस्त लोग गाली दे रहे, तू पागल है, तू इतनी मेहनत कर रहा है, तेरा सब फ्लॉप शो होने वाला है, की मत डाल, लोग अभी फिर यूज नहीं करेंगे. वो दे ऑल प्रूव टू बी रॉन्ग. बोला नहीं, आई हैव रेड दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स इन बुक्स दैट इफ यू क्रिएट स्कैरसिटी दैट आल्सो क्रिएट्स वैल्यू. पैसा लगाना एक ही चीज नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल बिनल, डू यू वैल्यू गूगल? या वी ऑल वैल्यू गूगल, राइट? Yes. And it is free, right? Does Google ask you to pay $1 to search the keyword? No, but you value Google. तो लोग बोलते हैं ना फ्री करेंगे, फ्री देते हैं तो लोग वैल्यू नहीं करते. ऐसा नहीं है. या इफ यू गिव वैल्यू, पीपल विल वैल्यू यू. और लोग मरते हैं की ढूंढने के लिए, और कुछ लोगों को तो एक एक महीने के बाद की मिलता है. तो नाउ इट्स देयर, बुकलेट इज देयर, इट्स नॉट माइन. अनइंस्टॉल करना तो भूल ही जाओ, वो तो हिम्मत ही नहीं उनकी. But when you put lot of effort, investment of effort, and you get something, जैसे मैंगो ना, कोई ऐसा बोलता है क्या मेरा फेवरेट फ्रूट केला है? इवन इफ केला बहुत मीठा है, कोई बोलता नहीं है कि केला मेरा फेवरेट फ्रूट है. कोई नहीं बोलता है. हमको एकदम चीप लगता है बोलना. क्यों? क्योंकि वो 12 महीने मिलता है ना, वो तो उसकी औकात वही है, 40 रुपए डजन पिछले 50 सालों से. तो न कम हुआ ना ज्यादा. बट आम साल में एक बार मिलता है, इसलिए उसको वैल्यू है. आम भी अगर पूरे साल मिलने लगा तो आम का अकेला हो जाएगा. या Binel, over to you. Okay. So the next and very important question for everyone. Everyone wants to grow in a compounding way. So what's your fundamental value of compounding? As we have seen booklet growing compoundingly in a big way. So how we should value ourselves and how we should grow compoundingly in our financial terms as well as in the personal terms. Yeah. See, the worst thing about compounding is that it is not in our control. Another worst thing about compounding, it happens only in the long run. आपको सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ ये दिन है आज का. I'll give a simple example. So just 6 months ago, मेरे दोस्त का फोन आया, अरे मेरे को भी तेरे ऐसा 6 पैक्स ऐप बनाना है यार, बोलना क्या करना है मेरे को, तेरा डाइट दे, ये दे. बोल रहा ठीक है,
एक तो पॉसिबल है क्या 3 महीने में एब्स? मुश्किल है पर पॉसिबल। इफ यू आर डिटरमाइंड इट इज पॉसिबल। उसका इतना बड़ा पेट था। तो फिर बाद में कुछ कॉल हुआ नहीं, और एक हफ्ते के बाद उसने मुझे उसके घर पे सत्यनारायण की पूजा थी तो उसके लिए बुलाया। तो मैं पहली बार जा रहा था उसके घर पे। तो वो नीचे आया मेरे को लेने के लिए। आई थिंक उसका घर कुछ दूसरे माले पे था। तो उसने लिफ्ट का बटन दबाया। तो मैंने बोला सेकंड फ्लोर है ना, चल स्टेयरकेस से जाते हैं। तो वो बोला अरे क्यों, जाते हैं ना, लिफ्ट से जाते हैं। मैं बोला हाँ पर तुमने तो बोला था ना कि अभी तेरे को 3 महीने में 6 पैक्स करने हैं, तो लेट्स टेक यूज द स्टेयरकेस। तो यू नो व्हाट ही सेड, अरे वो स्टेयरकेस छोड़ यार, तू मुझे प्रॉपर डाइट देना, प्रॉपर तेरा क्या कैलिस्थेनिक्स करता है, तू योगा करता है, वो प्रॉपर दे मुझे। लाइक यस दैट्स द होल पॉइंट, यू नो। Climbing the staircase and sharing is not Instagrammable. It's not big. It is stupid. It is small. But उसी में ही ताकत है. You know, I can give n number of books on the power of small thinking, the Kaizen, the spirit of Kaizen, atomic habits. पर वो छोटी चीज बोलने में मजा नहीं आता है ना, वो किक नहीं मिलता है कि मैंने आज 1 कप कम चाय पी। कौन सा ऑस्कर उखाड़ लिया हमने, क्या उखाड़ा, एक चाय का कप मैंने कम पिया ना, इसका वीडियो कोई बनाएगा नहीं। पर ऐसा वीडियो कि नो ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर इन 3 मंथ्स। आपने हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद पोस्ट दिखाए देखे होंगे आप, बिफोर आफ्टर के। पर किसी की हिम्मत हुई आप तक बोलने का कि आज 9 अगस्त है और 9 सितंबर को मैं 5 किलो कम वाला फोटो डालूंगी, मतलब बिफोर बिफोर हैपनिंग इट टेक्स लॉट ऑफ करेज ना, होने के बाद तो सब डालेंगे। बट मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल टू द पब्लिक कि आज 9 तारीख है और 9 सितंबर तक आज का मेरा वेट है से 75 किलो, एंड यू विल सी मी एट 70 on the weighing scale on 9 September. It has not happened. It's not so easy. Right? होने के बाद सब डालेंगे without Photoshop or with Photoshop. So I think no, छोटी चीजों में सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, यू वोंट बिलीव, ये जो 70 लाख 75 लाख में बोल रहा हूँ, आई स्टार्टेड विद 10 फ्रेंड्स जो मेरे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट्स में थे, एंड आई फोकस्ड ऑन देम। मैंने व्हाट आई हैव सीन इज पीपल ऑलवेज लुक फॉर न्यू कस्टमर्स, न्यू यूजर्स, न्यू रीडर्स। अरे नहीं भाई, तुम्हारे पास जो है ना 2000 acres of diamonds, उनको खुश करो, उनको वैल्यू दो, देन दे विल ब्रिंग। आपको बस पहले 10 लोगों को, आप जो अपने दोस्त है, घर परिवार, उनको खुश करना है, दोस्तों को, राइट? एंड those 10 people have helped me to bring those 75 lakh. Can you believe? एक एक तिनका जोड़ा है मैंने, and I personally know these people. या वो टिपिकल शाहरुख खान वाला फैन फॉलोइंग, I don't have fans. As you rightly said, I have friends. Every person thinks that Amrut is my personal friend, and they're right. So of course उसमें एफर्ट था, कुछ ऑटोमेटेड नहीं हुआ, व्हाट्सएप का जरिए मैंने यूज किया। या सो यू सी, यूट्यूब इंस्टाग्राम इज वन टू मेनी ना। आप अगर मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अमृत ने मेरे लिए वीडियो बनाया, नो। बट इफ आई टॉक टू यू ऑन व्हाट्सएप, इफ आई शेयर अ समरी ऑन व्हाट्सएप व्हिच आई डिड, अरे अमृत ने मेरे लिए भेजा है, दैट वाज द वो अभी एक मैंने आज एक दोस्त को समरी भेजी, इट्स नॉट इंस्टाग्रामेबल, नो, किक नहीं लगता है, कितनी छोटी चीज लगती है। वही 75 लाख लोग, वाह कितना बड़ा लगता है। अरे वो करने के लिए 8 साल लगे मुझे, 8 years। तो नथिंग, आई नेवर वेंट वायरल, आई नेवर वांटेड टू गो वायरल। यू नो वायरल आज बहुत फैड है लोगों को, वायरल जाना, वायरल जाना। एक तो आप वायरल जाते नहीं, आप वायरल होते हो। यू कैन मेक समथिंग वायरल, इट गोज वायरल। पहले तो वो बात है। और दूसरा, देयर इज अ फ्लिप साइड, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। सी, इफ समथिंग गोज वायरल, आपका कंटेंट भी वायरल जाता है ना, तो इट आल्सो रीचेस टू पीपल whom you would not like to serve. मेरा कोई वीडियो अगर वायरल गया ना, तो मुझे वो बिग बॉस की ऑडियंस मुझे नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड पीपल, बट फॉर देम आई एम फुलिश। ये क्या किताबें पढ़ता है, क्या पागल लड़का है ये, इतना मस्त मस्त दुनिया में सुंदर सुंदर चीजें है,
लोगों के झगड़े देखो, अंदर से मस्त क्या चल रहा है, मसाला चाहिए, सलमान खान के पिक्चर देखो, नॉनसेंस दिमाग बाजू पे रखने का, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, पॉर्न देखो, बस यही हमारी लाइफ है। गो अहेड, ओके फाइन, आई एम नॉट फॉर यू, बट व्हेन द कंटेंट गोज वायरल तो उनके पास भी जाएगा, और फिर सब गलत फेमियां, वो बोले कि उनको नो कमेंट्स का रिप्लाई देना, ट्रोलिंग करना, वो सब होगा। फिर मुझे उनको बताना पड़ेगा, अरे भाई आपको गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं ऑथर के पेट पे लात नहीं मारता हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। यू गेट माय पॉइंट? बिकॉज इट वाज ऑलवेज अ मेथोडिकल ग्रोथ, तिनका तिनका, बिकॉज आई नेवर चेंज नंबर्स। या सो आई थिंक नो, बस आपको आज क्या करना है, मेरे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, मेरे लिए क्लाइंट्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं, फॉर मी दे आर रीडर्स, उनको मैं, जैसे हमारी परसों बात हुई, मैं बोल सकता था ना कि अरे विनर इट्स वेरी शॉर्ट नोटिस, ऐसे कैसे, मैं नो आई हैव ग्रोन सो बिग, बट आई जस्ट चेक माय कैलेंडर, इट वाज एम्प्टी, आई सेड यस। Why? Because we know each other for almost more than 5 years. Okay, for me, giving you priority was more important than hunting 1 lakh more readers, right? Because आपको वैल्यू दे के ही वो 1 lakh हो जाएगा अपने आप, right? Yeah, I think I've answered the question. That's super kind of you. You reminded me of the Gita shloka. कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो. Like, Yeah, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ मैं। there's a question by Shreya again. So this is my first attempt for this session. Can you share me how to start reading and how to inspire yourself? Start reading. You're already reading, my dear friend. You're reading those OTP messages. You're reading WhatsApp forwarded messages. You're reading those comments on Instagram and Facebook. ये तो मत सोचो कि यू आर नॉट रीडिंग, अनलेस यू आर अंगूठा छाप, or you are 100% blind. Okay, so don't think that you are a non-reader. There is nothing called reader or non-reader. Okay, so let me ask Shreya a counter question. Since you said that how to start reading, how can I get started with reading? Can I ask you, Shreya, I want to start watching Bollywood movies. Where should I start from? ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं? अरे क्या, ये क्या सवाल है, कुछ भी देखना है यार, अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर, वरना छोड़ दे। तेरे को ऋतिक अच्छा लगता है तो ऋतिक देख, तेरे को दीपिका पादुकोण लगती है तो उसका पिक्चर देख, नहीं अच्छा लगा तो आलिया भट्ट को चिपक। इट्स सो कैजुअल, राइट? राइट, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग वी टेक इट टू सीरियसली, एंड that reminds me of my book, The 7 Habits of Highly Effective Readers. The first habit in that book is don't take reading too seriously. Now, don't take this statement in the wrong way, okay? I'm not saying read casually. क्या मतलब पीछे कुछ टीवी चालू है, यूट्यूब का गाना चालू है, रीडिंग में, वो नहीं बोल रहा हूँ। Don't take reading too seriously. The keyword is too. This question itself shows that you are taking it too seriously. Where should I start from? What is the right time to read books? मॉर्निंग और इवनिंग अमरुद, मॉर्निंग में मैंने सुना है कि ज्यादा हम ग्रास्प करते हैं, मतलब मे बी देयर इज सम scientific evidence for that, but do you say that what is the right time to chat on WhatsApp, morning or evening? कब ज्यादा हमारा चैटिंग अच्छा होता है? Now you get my point, right? So if something is important to you, don't make it special, make it casual, because habits are casual, and something that becomes casual probably also becomes habitual. Something which is habitual is always casual. Watching TV, watching videos on YouTube, scrolling on Instagram, there are no rules. Gossiping, chatting on WhatsApp, या बॉस को गाली देना, कैंटीन में गॉसिप करना, ऑफिस के सब दे आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. यस और नो? डू यू प्लान? यू डोंट प्लान. इंटरेस्टिंग ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर टू डू लिस्ट, बट यू डू. या टू डू लिस्ट पे शामिल भी नहीं है, स्टिल वी एंड अप डूइंग देम बिकॉज दे आर कैजुअल, राइट? So I think the second part of the question was inspiration. So inspiration, motivation थोड़ा ज्यादा ओवररेट हो गया आजकल, क्योंकि उसके व्यूज बहुत इजीली आते हैं ना, तो लोग उस पर बहुत वीडियोस बनाते हैं. See, more than motivation, what we need is momentum and not motivation. Momentum कब आएगा?
when you place some motivational factors around that activity which you want to learn from. See, for example, मेरा एक couple friend है, रिलेशनशिप पे बहुत सुंदर उन्होंने क्या किया. See, एक कपल का फर्ज बनता है टू अपलिफ्ट ईच अदर. मैंने ऐसे कपल, आई एम नॉट सेइंग ओनली हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी दो दोस्त हो सकते हैं या भाई बहन हो सकता है. मैं तो लोगों का सहारा लेता हूँ खुद को ग्रो करने को. मुझे पता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन. तो कपल है, तो पति ने बोला कि अरे मुझे ना चाय की लत लगी है बहुत, तुमको पता है मैं 5-5 कप चाय पीता हूँ, तो कुछ करते हैं ना. और बीवी बोली हाँ यार. सी, फर्स्ट तो ही एक्सेप्टेड हिज वीकनेस. दैट इटसेल्फ इट टेक्स लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी कि बीवी के सामने ये बोलना कि आई एम फॉलिंग वीक इन समथिंग, इन इटसेल्फ हैट्स ऑफ टू हिम. क्योंकि पति लोग को इतना ईगो रहता है ना, मैं झुकूंगा नहीं, सब पुष्पा रहते हैं. तो ही सेइंग दैट नो आई वांट टू इंप्रूव, आई एम लैकिंग इन समथिंग, उधर ही आप जीत गए. एंड देन उन्होंने एक गेम बनाया कि आज मी वर्सेस यू सपोज. तो अगर मैंने आज 2 कप चाय पिया तो 2 लिखूंगा, अगर उसने 3 कप तो 3 कप. एंड एट द एंड ऑफ द वीक जिसका स्कोर कम होएगा वो जीत गया. दिस इज व्हाट, these are called motivation factors. Use numbers, gamify the activity. Of course, if it's a bad habit, so lesser the better. If it's a good habit, higher the better. So these are the things. Abhi exercise, I was struggling to exercise regularly. So I learned this from the most unexpected source. So I was reading a book. वहाँ पे AAA, Association of Alcoholic Anonymous करके संस्था है, which works to help the people who are addicted to alcoholism. And there are some 12 steps which helps them, and there is 13 step. तो 12 step तो सब लोग करते हैं, but अगर 13 step नहीं किया ना, there is a fair chance that they'll go back to their old behavior of drinking. And what is that third step or 13th step? और 13 step किया ना, almost 100% लोग उन्हें they have quit drinking. They did not start again. You know what is that 13th step? Can you believe? Can anybody guess? I have a question for you. Can you guess क्या हो सकता है वो? Start from one. No, To no. see the alcohol bottle again. No. I like that answer, but that's not the answer. To Believe imagine in it again. God. You can't believe क्या वो, and it is such a helpful step. And I've started using it everywhere. Of course, I don't drink. Okay, let me reveal that answer. I think somebody answered partially. Keep your glass upside down. Okay, I think तजुर्बा से बोल रहे कोई. So the 13th step was to help another addicted person to get rid of alcohol. And I learned the biggest lesson of my life, that if you have a problem, find out a person who has a similar problem and help that person solve that problem, and I bet you will solve your own problem. I should repeat this. Please write this down. If you have a problem, find a person who has a similar problem, help him or her to solve that problem, and your problem will get solved. हजम नहीं होगा. मुझे 6 महीना लगा है समझने को कि भाई मैं अगर दूसरों को हेल्प करूंगा तो मैं कैसे ग्रो हो जाऊंगा, वो आगे चला जाएगा ना, मैं कैसे हो जाऊंगा. इट हैज वर्क फॉर मी, ट्रस्ट मी. तो मैंने क्या किया, आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय फिटनेस रेजिम. मैंने 3-4 लोग जो उनका पेट था, और वो भी 1 साल का जिम का फी भरते हैं और फिर 1 महीना जाता है, बाकी 11 महीने का डोनेशन हो जाता है. या तो उनको बुलाया कि भाई मेरे पास टेरेस है, लेट्स मेक यूज ऑफ इट, और थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स है, हम कुछ नहीं तो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, मुझे तुमको सिखाना है. मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखा है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ट्रेनर, बट मुझे तुमको सिखाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में. और मैं भी उनके साथ कर रहा था. ऑब्वियसली हम साथ में करेंगे. जहाँ पे 10 बर्पीज थे वहां पे 12 बर्पीज मारने को उनको एनकरेज किया. 10 नहीं, तू 12 मार सकता है. ऑब्वियसली मैं भी 12 मारूंगा ना. एंड यू नो व्हाट, आई हैव गॉट बिग बाइसेप्स एंड 6 पैक्स. एंड द बोनस, द ऑक्सीटोसिन that I got, the happiness कि मैंने दूसरे की हेल्प की. Of course, those guys are in love with me. They have fallen in love with me कि भाई अमरुद दादा ने हमारे ट्रांसफॉर्मेशन किया यार, सेल्फलेसली.
बट उनको ये नहीं पता था कि उनको इंस्पायर करने के चक्कर में मैं खुद इंस्पायर हो रहा था. Because if I become a source of inspiration for somebody, I have to be remain inspired. And ये इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोल सकता हूं आर्मी. आप इंडियन आर्मी में वो राइफल शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, वो सब तो ट्रेनिंग ठीक है, कोई भी सीख लेगा. दैट इज नॉट द मेन थिंग. सबसे रोज उनको क्या सिखाया जाता है पता है? What to do on the combat field, on the battlefield. They're bombarded with this line, this motto. How can I save my brother on the right and how can I save my brother on the left? इतना ही करना है. जब मेरे लेफ्ट और राइट के भाई को मैं बचाऊंगा ना, तब हम जंग जीतेंगे. या दुश्मन को मार के जंग नहीं जीता जाता है, या खुद मर के जंग नहीं जीता जाता है. अरे मरोगे तो जंग हारेंगे ना. हम बोलते हैं ना, मैं देश के लिए मर मिटने को रेडी हूं. अरे मरना नहीं है, मार के जिंदा लौटना है. तो सोचो, हर इंसान, हर सोल्जर, हर फौजी ये सोचेगा कि मेरे लेफ्ट और राइट को मुझे बचाना है, विल विन द वॉर. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, राइट? जस्ट सोचो बिनल, अगर ये फिलोसॉफी हम हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाएंगे तो, that my job is to help the person sitting on my right cubicle and in my left cubicle. You will thrive, they will thrive, the company will thrive. Yes or no? I'll ask you a question, okay? Vinal, you are the boss in the company and you have two candidates and you have to promote one of them. Now, first candidate is a perfectionist. He comes on time, सब किया दिया हुआ काम perfectly करता है, या rarely कुछ गलतियां करता है, is very cooperative, arrogant नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हाँ? पर उसका काम वो परफेक्ट करता है. दूसरा बंदा है तो सबकी हेल्प करता है. वो किसी को, अरे वो जो शाय लड़का है जो मीटिंग में थर थर कांपता है, उसको जाके मोटिवेट करता है, अरे तू भी बोल सकता है, बस ऐसा ऐसा इतना ध्यान रखना है. किसी को पावर पॉइंट बनाने में हेल्प करता है तो वो मार्केटिंग में, पर सेल्स में जाके उनको कुछ टिप्स देता है. बस सबको हेल्प कर रहा है. क्या चांसेस, आप किसको प्रमोट करोगे? Second one, obviously. सेकंड को. बट मैंने बोला क्या कि ही इज डूइंग हिज ओन जॉब वेरी वेल? मैंने बोला भी नहीं. बट यू अज्यूम, राइट, कि अगर वो दूसरों को हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली खुद का तो वो अच्छा ही करेगा. Definitely. क्यों क्यों हम ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा प्रमोशन, मेरा पगार, मेरी ग्रोथ, मेरा करियर, सब सेल्फिश, मैं. मेरा पूरा अभी फोकस चेंज हो गया. आई जस्ट फोकस ऑन अदर्स एंड आई एम ग्रोइंग. यू हेल्प मी ग्रो, right? So let's bring this change in our mindset, yeah, and trust me, this That's a will really superb help you. idea. That's a mind-boggling thing because in this AI world and everything, अभी सब लोग का वही टेंशन है. यूएस का जॉब डेटा में इशू आ रहा है. इंडिया इज ऑन द रिसेशन, लाइक मोस्ट आई थिंक पहले वो कभी प्रॉब्लम नहीं आता था, मेंटल हेल्थ का इशू और समथिंग. देयर वाज नेवर अ वर्ड, बट नाउ दिस इज वेरी मच कॉमन दैट ही इज हैविंग मेंटल हेल्थ इशू एंड सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है. सो हाउ कैन वी कोप विद दिस एंड हाउ कैन वी, मतलब हम लोग अपने आप को एडवांस कैसे कर सकते हैं टू डील विद एआई एंड अदर थिंग्स, एंड अच्छा कैसे बन सकते हैं इन दिस वर्ल्ड? करेक्ट. आई थिंक ये सेशन से अगर आप ये एक चीज भी लेके जाओगे ना, तो आई थिंक मेरे मेरे सेशन का सार्थक हो जाएगा. forget about speed reading and over, those are all byproducts, okay? Just go back to our basic human values. Helping each other is my life motto. Just help others to grow और आपकी growth guaranteed है. Thank you so much for this. So anybody would like to ask a question? Yeah, Hello, I have sir. a question. Sorry, please. Okay, Yeah, please who's this? continue. Hello. Continue. Yeah. Yeah, very simple and a very important question for me, that like movie watchers have a favorite movie, like just like them. Which is your favorite book? अरे बाप रे, ये मतलब you are asking me to choose between आलिया भट्ट, कटरीना कैफ and दीपिका पादुकोण. Yeah, just like तीनों ही that. पसंद है मुझे. ओके, टफ चलो क्वेश्चन. तीन बता दो, अपनी तीन बता हाँ. दो. आलिया भट्ट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है and it keeps changing every week.
Okay. So see, as of now, I read a book called Hold Me Tight. पिछले हफ्ते मैंने वो बुकलेट में भी रिलीज की. I fell in love with that book. Hold Me Tight. Yeah, Okay. नाम से पता चल रहा है कि it's about relationships, but not just the romantic relationship, can be applied to anywhere. What I've learned is, you know, the best, the happiest people in the world are mostly psychiatrists and psychologists because they understand the human psyche so nicely. They end up to be very happy. मतलब दूसरों के दुख दर्द सुन सुन के उनको समझ में आता है कि कि बहुत बार रिलेशनशिप में ना कम बोलना इज द बेस्ट सॉल्यूशन. झगड़े हमेशा ज्यादा बोलने से होता है. सिंपल सिंपल नुस्खे रहते हैं. दैट डजंट मीन कीपिंग क्वाइट. कम बोलना मतलब आई एम नॉट सेइंग टू शट अप एंड कीप क्वाइट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन Okay. कीपिंग क्वाइट एंड टॉकिंग लेस. जैसे बहुत Okay. सुंदर सुंदर चीजें इस बुक में लिखी है. होल्ड मी टाइट, उसकी समरी भी बुकलेट ऐप में ऑलरेडी है. Okay. Yeah. I will surely surely listen. Yeah. Wow. And Wonderful sharing. second book I would share is The Second Mountain by David Brooks. So it's the mountain is a metaphorical mountain, which says the Okay. first mountain is जहाँ पे हमको पैसा चेज करना है, पावर दिखाना है, आई एम ग्रेट, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बड़ा टीवी, बड़ी गाड़ी, ड्राइवर, yeah, suit good, must. So usually, and that is there's nothing wrong in it. So usually most of people climb the first mountain, and then Okay. once you're at the peak of the mountain, there is a Huh. valley of suffering. Life कितनी लग Okay. जाती है ना. Yeah. Maybe death, death in the family, bankruptcy, suicide attempt, yeah, कुछ भी हो सकता है. Any big adversity, COVID, Yeah. COVID हमको पता है कि उसमें Yeah. इसका जो नुकसान हुआ है. And then very few people climb the second mountain after ये सब life की लग जाती है. Mostly people go back, but they don't go back on the first mountain, but they never reach the top because of the adversity. But very few Okay. people try to climb the second mountain, which is Okay. making a sense meaningful contribution to others, helping people. Now the journey is inward. खुद की गलतियां दिखना ज्यादा दिखता है कि fingering one finger at other people is very easy. और उस वक्त हमारे 3 उंगलियां हमारे पास ऑलरेडी है, वो नहीं दिखता है. It's about purpose driven life rather than just passion or paisa. And the whole thing changes. I think I'm lucky that at a very young age I'm already on the second mountain. Wow. Great. Thank you. So you mean to say you have two books, you would say that they are your favorite. Yes, hold me tight. और ये सवाल अगले हफ्ते पूछोगे तो कुछ और बोलूंगा मैं. Change होगा. Okay. Thank you. Yeah, Thank you so much. Hello, sir. Yeah. Prathamesh here. I want to ask you one question that means how to be consistent in reading. Means what happens with me, to be genuine, that I take one book and reach up to its middle, and but can't able to reach up to its end page. So what to do? Overcome this Right. thing. Very good question. See, the problem. What's your name? Sir? Prathamesh. Prathamesh. See, there is a fat book of say 300 pages. कौन सा 300 पेज का? टिम फेरिस का द 4-hour वर्क वीक. इतना बड़ा जाड़ा बुक है. नाउ वो दिखाऊंगा तो आप बोलेगा अरे बाप रे इतना मोटा बुक पढ़ना है. Yeah. Okay. Let me give you a better analogy. Prathamesh, how many WhatsApp messages you must have read till now? जब से WhatsApp तुम्हारे मोबाइल पे लॉन्च हुआ है तब से आज तक तुमने 10 लाख मैसेजेस पढ़े होंगे. वो भी बहुत Yes. कम बोल रहा हूँ मैं. 10, चल कोई भी बड़ा नंबर ले. Countless. पढ़ा है ना हम सब ने. Yeah. Yeah? Yes. हाँ. अभी वो सब मैसेजेस को मैं इकट्ठा करके किताब बनाऊंगा तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी. तो उसको पढ़ोगे आप? मुश्किल है ना. हाँ. तो वो आपने पढ़ा है ऑलरेडी. अरे गेटिंग माय पॉइंट. Correct. द प्रॉब्लम इज कि हम जब सब कुछ बड़ा देखते हैं ना, आवर ब्रेन हेट्स बिग थिंग्स, ह्यूमंगस थिंग्स. बड़ा बड़ा के लिए हमारा ब्रेन बना ही नहीं है, छोटी चीजों के लिए बना है. तो वही बड़ी किताब को 200 पेजेस की आपको पढ़ना है, उसका एक पन्ना फाड़ के मैं तुमको दूं तो आप पढ़ोगे. फिर दूसरा पन्ना फाड़ के दूं तो तुम पढ़ोगे. फिर तीसरा पन्ना फाड़ के दूं तो ऑफकोर्स मैं फाड़ूंगा नहीं, बुक का सत्यानाश हो जाएगा. पर कहने का मतलब ये है, दैट्स व्हाई वी लव रील्स.
60 सेकंड के वीडियोस, 1 मिनट का ना, 2 मिनट के वीडियो, छोटे छोटे। अब लॉन्ग वीडियोस जो 2-2 घंटे के हैं, देखो उस पे ज्यादा इतने व्यूज नहीं आते जितने शॉर्ट वीडियोस पे आते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस? या पर वही 2 घंटे हाँ का वीडियो मैं आपको कट करके दूंगा ना, 1-1 मिनट के रील्स, आप देखोगे हाउ फनी इज दैट। सो हम बोलते हैं कि हम बहुत इवॉल्व हुए हैं, नहीं, वी स्टिल पोजेस दैट मंकी माइंड। या हमको बस वो चेंज चाहिए, ये कभी ये, अभी ये चेंज करेंगे, अभी बाबा राम देखेंगे, अभी कुछ नरेंद्र मोदी का देखेंगे, अभी कुछ ये इंडियन आइडल देखेंगे, यू नो, दिस इज व्हाट। सो आपको उसको कंट्रोल करना है। द प्रॉब्लम इज नॉट विद कंसिस्टेंसी, द प्रॉब्लम इज दिस मंकी माइंड। तो आपको क्या करना है, यू वोंट बिलीव, मैं बोला आई रीड 1 book a day, बट यू नो व्हाट इज माय टारगेट नंबर ऑफ पेजेस व्हेन आई ओपन द बुक? 2 pages, दैट्स ऑल। 2 pages, can you believe? A person who reads 1 book a day, उसका टारगेट होता है 2 pages. But when I convince myself that I have to read only 2 pages, I at least open the book and start reading, because 2 pages पढ़ने के लिए मुझे विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। 1 मिनट का वीडियो देखने के लिए जैसे विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, पर 1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए विल पावर लगता है। Got it? Now you understand our brain hates big tasks, projects, बड़े बड़ी चीजें। आपको बोलूंगा मैं, प्रथमेश तुमको ना 1000 रोप जंप्स मारना है, 10 किलोमीटर मैराथन करना है, फिर आके 100 सूर्य नमस्कार मारना है। प्रथमेश बोलेगा हेलो हेलो नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, राइट? पर मैं बोलूंगा प्रथमेश आपको बस 2 पुशअप मारना है, ओनली 2 पुशअप्स। द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ प्रथमेश वुड बी, अरे 2 पुशअप मैं ऐसे ही मार लूंगा। या एंड जादू वो छोटे नंबर में है, 2 या 3 नहीं, कोई भी छोटा नंबर। आफ्टर डूइंग दिस 2 पुशअप्स, देन कम्स द मोटिवेशन। हमको लगता है पहले मोटिवेशन आता है फिर एक्शन आता है, नहीं, पहले एक्शन करो, मोटिवेशन फॉलोज। समझा? मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्शन, एक्शन डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन। दैट एक्शन नीड नॉट बी बिग, इट कुड बी एज स्मॉल एज 1 पेज, 2 पुशअप्स, 1 स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट। डोंट थिंक मुझे 20 स्लाइड्स बनाने, 1 स्लाइड, छोटा छोटा चीजें करो। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द फर्स्ट डिस्कशन, ओके? पर देखो ना, कोई ऐसा बोलेगा मैंने आज 2 पेजेस पढ़े, इसका वीडियो बनाओगे क्या इंस्टाग्राम पे? कोई एक भी नहीं दिखेगा आपको। आई थिंक आई सो कंसिस्टेंसी पे मत फोकस करो, नो, फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। इनफैक्ट मैं हाइट बताता हूँ, एक ने क्या किया मालूम है, ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज फिटनेस रेजिम। उसने क्या शुरू किया मालूम है, मैं रोज जिम जाऊंगा, 5 मिनट रिसेप्शनिस्ट पे बात करके वापस आऊंगा। हाउ फुलिश इज दैट? उससे थोड़ी बॉडी बनने वाली है, बट इट वाज अ प्रोफाउंड थिंग। See, before you improve a habit, first you need to establish that habit. Now, what he started identifying with himself is, I go to the gym. Now, gym जा तो रहा हूं, तो एटलीस्ट वो रूटीन में फिट तो हुआ कि नीचे उतर के बाइक चालू करके जिम जाना है। भले मैं वो 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, अभी जा ही रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद उसको लग रहा है, अरे जा ही रहा तो थोड़ा हाथ पैर भी हिला लेता हूँ यार, कितना फ्लर्ट करूंगा रिसेप्शनिस्ट के साथ। राइट? ऐसे ऐसे करके नाउ ही इज लाइक 2 hours ऑफ डेली एक्सट्रीम वर्कआउट करता है वो। देखो कितना छोटा उसने सोचा, which sounded foolish to me. I ridiculed him initially, but now I regret, and hats off to you, I salute him. Thank you so much for that wonderful learning. Like, I've never thought earlier कि action से, मतलब you need action for motivation. We all were doing ulta, you know, that affirmations and visualization and all that stuff, and it never worked. Right. So, yes, there is a question from Rupesh More and Siddhi Dombre. So, who would like to ask first? गुड इवनिंग अमृत सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। फिर मत बोलो यार, अमृत बोलो। हाँ, चलो। I also inspired by booklet apps, and I spread to my friends also through booklet key. I have one question that how do we get money? Oh, that's such a cute question. मैं पैसा नहीं कमाता हूँ भाई। 8 साल हो गए मैं नील रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, और मैं सीए हूँ। ओके, मैं एक ही सीए हूँ जो 31 जुलाई को बाहर घूमने जाता हूँ।
जब मेरे सब सीए फ्रेंड्स रात भर काम करते रहते हैं, रिटर्न फाइल्स करते रहते हैं लोगों के. So, as I said, I am already on the second mountain. Okay, मुझे पता है कि अगर मैं लोगों की हेल्प करूंगा ना, दिलो जान से हेल्प करूंगा ना, all other things will fall in place. या मुझे एक 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 किस्सा बताता हूँ. You asked me about money, right? मुझे एक फोन आया, ईमेल आया था कि अमृत, I love your videos. You know, every video has you share something big idea from the book, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, भले ही वो 2 मिनट का वीडियो हो या 1 घंटे का वीडियो हो. पर ना तुम वो पिक्सेल्स तेरे कभी कभी फटते हैं, वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता है, तो मैं अपने लिए तुम्हें आईफोन 13 भेज रहा हूँ. दिस लाइक आईफोन 13 वाज द लेटेस्ट इन दोस डेज, 3 years ago. मतलब जिसके लिए लोग मरते हैं आईफोन लेने के लिए, दे कम टू मी एज अ गिफ्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट. मनी शुड कम टू यू एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पैशन, ऑफ योर पर्पस ऑफ लाइफ. या ये किंडल, ये अच्छे अच्छे कपड़े मुझे गिफ्ट आते हैं. ट्रस्ट मी. मतलब मुझे मुझे बोलना पड़ता है कि अभी मत भेजो मेरे बर्थडे के दिन. वैसे मेरे 2 बर्थडे होते हैं साल में. एक बुकलेट गाय का बर्थडे होता है 23rd अप्रैल, विच इज वर्ल्ड बुक डे, जिस दिन बुकलेट ऐप लॉन्च किया. और एक 7 जुलाई जो मेरा मेरा जन्मदिन है, जिस दिन मैंने माँ से पेट से पैदा हुआ. तो मैं लिटरली, तो पिछले साल मैंने क्या किया, मैंने ऐलान किया सबको कि अभी बस हो गया, गिफ्ट मत भेजो. जो भी वैल्यू आप गिफ्ट लेने वाले थे ना, तो मैंने एक लड़का है जो बुकलेट रीडर था, वोराशियस, एंड ही वाज अ ट्रक ड्राइवर, एंड इन एन एक्सीडेंट ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स. तो वो अपाइच हो गया हमेशा के लिए. और मैंने ऐसे शार्क टैंक का कोई एपिसोड देख रहा था, तो उसमें मुझे एक बाइक, जो अपाइच के लिए एक बाइक बनाई उन्होंने, इलेक्ट्रिक बाइक. तो मुझे ख्याल आया कि यार इस दोस्त को हेल्प करते हैं, जो इतना अच्छा दोस्त है, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता, ट्रक तो चला नहीं सकता है. तो मैंने और मेरे बर्थडे को एक हफ्ता बाकी था, तो मैंने पोस्ट डाला कि ऐसा ऐसा मैंने बाइक देखा है जो 1 लाख रुपए का है, और एक अपना बुकलेट रीडर है, उसको हम हेल्प करेंगे. तो आप जो भी गिफ्ट देने वाले थे ना मुझे बर्थडे को, उसका सेम वैल्यू, आप मुझे पैसा दो, हम उसके लिए वो बाइक लेंगे. विद इन 4 days 1 लाख रुपए जमा हुआ, विद इन 4 days. एंड ही गॉट दैट बाइक, एंड नाउ ही इज वेरी मोबाइल. तो कुछ नाके पे जाके कैलेंडर और अगरबत्ती बेचता है, और रोजी रोटी उससे कमा रहा है. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स, वंस यूजुअली मैं देखता हूँ ना, जब फेम होते हैं तो बस और फेमस होने के लिए फेम का यूज करते हैं, या और पैसा कमाने के लिए फेम का यूज करते हैं. नो, आई थिंक फेम हैज गॉट लॉट ऑफ पावर. उस पावर को अगर अच्छे से चैनलाइज करेंगे ना, तो मजा आता है. आजकल मेरा काम यही है कि कोई नीडी चीज लड़का है जिसको कॉलेज की फी भरने को नहीं है, तो चलो, दुबई का एक दोस्त है मेरा, वो अपना बड़ा अच्छा फैन है, रीडर है, तो जोड़ देता हूँ. हाँ, हम लोग ठीक है, 20,000 दे रहे हैं ना, दे देता हूँ. बस यही चल रहा है मेरा. बुकलेट का काम तो बहुत कम है मेरा आजकल. कोई स्टार्टअप है, उस वो आते हैं मेंटरिंग के लिए, हाँ चलो करते हैं, तो उसमें सोशल एंगल कैसे ला सकते हैं, या यही चल रहा है मेरा काम आजकल. सो नाउ इवन मुझे पता नहीं कहाँ से पैसा आता ऑनेस्टली. पर गुजारा हो रहा है. द ऑब्जेक्टिव टू कवर द कॉस्ट. हमारा मंथली बिल ही मेरा, वो बुकलेट ऐप का जो सर्वर और आईटी फीस का कुछ 1.5 लाख रुपए हो जाता है. पीपल बाय माई बुक. नो, आई हैव अ बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स. तो जब लॉन्च करना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मुझको लॉन्च करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है, तो मैंने पोस्ट डाला इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कि देखो भैया, ये सोशल एंटरप्राइज है, सोशल वर्कर नहीं हूं मैं. तो ऐप के अभी रीडर्स बढ़ते जा रहे लाखों के तादाद में, तो कॉस्ट तो कवर करना है. और मुझे बहुत लोग पूछते हैं, ये जो धुले नांदेड़ से बच्चे, 20 बरस के बच्चे, 15 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, कि हमको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, पर हमारे पास पैसे नहीं है, वी कांट अफोर्ड, वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली. और मुझे कोई ठीक से मैं जवाब नहीं देता था. मैंने बोलता था कि अरे ऐप है ना, बुकलेट ऐप तो फ्री है, वो तो पढ़ो. तो क्या बोलते थे, वी हैव रेड ऑल योर बुकलेट्स. जो भी तुमने 300 700 सब पढ़ लिए, 2 2 बार, कभी सुना है कभी पढ़ा है. नाउ वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर अ नेक्स्ट अपलोड फॉर वेडनेसडे. एंड my heart melted for such passionate but needy readers. But वो पोस्ट में मैंने लिखा, but now that I've written my book, I have an answer. So those who can afford, those who are not in a hand to mouth situation, who are doing well financially, please buy the book for 300 rupees. So that I can give the book for free for such passionate but needy readers, and partially use the money for these
सर्वर रेंट एंड ऑल, क्लाउड सर्वर वगैरह। तो मैंने वो पोस्ट रिलीज किया और 2 घंटे में मुझे, 2 घंटे क्या बोलता हूँ, 10 मिनट में मेरे दोस्तों के कॉल है, तू क्या खुद को मदर टेरेसा समझता है क्या, सब कुछ फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है, ऐप भी फ्री, अभी बुक भी फ्री में दे रहा है। तो मैंने बोला कि फ्री कहाँ बोला, मैंने बोला ना इफ यू कैन अफोर्ड पे 300 रुपीज, इफ यू कांट अफोर्ड आई विल गिव फॉर फ्री। तो उन्होंने बोला अरे ये तो इंडिया है, सब कुछ फ्री में मांगेंगे देखना। तो बोला हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, तो मैं डर गया, मुझे लगा मैंने गलती की। तो पहले तो वो पोस्ट डिलीट कर दे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चल 4 घंटा रुकते, कमेंट्स में अगर सब फ्री 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 बोलेंगे तो मैं डिलीट कर दूंगा पोस्ट। और मैं 4 घंटा रुका। हाउ मच मनी आई मस्ट हैव रिसीव्ड इन दोस 4 आवर्स, कैन यू बिलीव? 300 रुपए के बुक का 1,75,000 रुपीज इन 4 आवर्स। मतलब फेसबुक कमीशन मांगेगा अगर उसको पता चलेगा। क्या हुआ, people who are really doing financially well, affluent families, well to do, they said, I am giving you money for 10 copies. You send me only one for my read and use the remaining money for those 9 copies to give to those needy readers who's asking for and for your expenses. See? क्या ये कोई फाइनेंशियल मॉडल है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ सीख के आया हूं मैं? जी नहीं। Kindness is there in everybody, but we should be the first one to show kindness. Only then kindness boomerangs. हम बस दूसरों से अच्छाई की अपेक्षा रखते हैं। Yeah, be the change you wish to see in others. Again, nothing new in this. बरसों से सुनते आ रहे हैं, महात्मा गांधी बोलते थे, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। So yeah, ऐसे गुजारा होता है मेरा। I am a penniless millionaire. बैंक बैलेंस कम है मेरा, बट आई फील लाइक मेरा सोशल वेल्थ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। आज मैं नो किसी को अगर 10 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आई नो कि वो नीडी है, 2-3 कॉल करके वो काम हो जाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। Just wow, sir. So my next question is, any recent book you read on relationships and what new you learned from it? अरे एक नया सो मैन ऑफ फ्रॉम मार्स तो तुमने सुना होगा बुक, मतलब बहुत पुरानी, उसका नया आया है बियॉन्ड मार्स एंड वीनस। अभी हुआ क्या है, सी अभी ये डिवोर्स रेट तो बहुत नॉर्मल हो गया, मतलब घर घर में ये, आई माई सेल्फ आई हैड अ फेल्ड मैरिज, और मुझे इसमें बोलने में कुछ भी शर्म नहीं है क्योंकि सब जगह दिख रहा है। एंड आई लुक एट इट एज जस्ट अ ब्रेकअप, जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट में कोई कुछ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कुछ बवाल नहीं करना है उसका, जस्ट अ ब्रेकअप। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग कि क्या हो रहा है, इतना कॉमन क्यों हो रहा है, या सो हो क्या रहा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आई एम जस्ट गिविंग एन इंडियन एग्जांपल ऑफ द एग्जांपल दैट द ऑथर गिव। सी माँ बेटे को कुछ भी करने नहीं देती घर पे, ना सब्जी में कुछ हेल्प करना, या बस खाना सिर्फ बनाना, ये प्यार है, पर खाना परोसना थाली में, आई थिंक इट्स पैम्परिंग। और फिर वो लड़के को कुछ आदत नहीं होती और लड़का बड़ा होता है, फिर शादी होती है, आइदर लव मैरिज और अरेंज मैरिज। फिर बीवी बोलती है अरे तू टीवी देख रहा है ना, थोड़ा मुझे वो ये काट के देना सब्जी। तो लड़का बोलता है कहाँ, ये भी तो सही बात है, बीवी को हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो भी बाहर काम पे जाती है। तो बेचारा काटने की कोशिश करता है। फिर माँ बोलती है अच्छा बेटा, जैसे बदल गया तू बेटा, हाँ मुझे तो कभी कभी हेल्प नहीं की तुमने, हाँ अभी जैसे बीवी आती है तू बदल गया। हाँ, फिर जोरू का गुलाम ऐसा बोलने लगे। और फिर ताजुब, लड़के को समझ में आता है अरे ये ऐसा क्यों बोल रही है माँ, या बीवी को समझ में नहीं आता, मैंने कौन सी बड़ी बात की, बस टीवी देख रहा है तो थोड़ा काट के देने का। सी व्हाट हैज हैपेंड, किसी एक की गलती नहीं है। माँ को समझ में नहीं आता है कि अचानक लड़का कैसे बदल गया। मेरे हालांकि उन्हीं उन्हीं ने सिखाया है कि ये सब नहीं करना है तुमको, राइट। सैंडविच हो रहा है लड़के का, वो बहू है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतना क्या एक्सपेक्ट कर लिया। सो आई थिंक समवेयर देयर इज नो अपग्रेडेशन ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूट। सी होता था क्या, पहले हंटर गैदरर्स थे ना हम, कि एक पति, जब जब मैरिज एज अ कंसेप्ट आया था, पति का काम था बाहर से खाना लाना इन द फॉर्म ऑफ अ हंट। कभी बड़ा शिकार, कभी छोटा शिकार। बड़ा शिकार ले आया तो बीवी और बच्चे खुश, पापा ने ये लाया, राइट। और बीवी का काम था घर पे बैठ के बच्चों को संभालना और खाना पकाना। नाउ
everything has changed. Yeah, women, just imagine, let's change the scenario कि पति ने एक हिरन लेके आया उस जमाने में, हाँ, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सब वाह करेंगे, और पत्नी वहां से तेरे से भी बड़ा हिरन लेके आई, देख, दिस इज द करंट सिचुएशन नाउ. आई गेट योर पॉइंट. साउंड्स वेरी फनी. और फिर भी पति को समझ में नहीं आ रहा है, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, मैं घर का सब आमदनी कर रहा हूँ, फिर भी बच्चे खुश क्यों नहीं है, बीवी खुश क्यों नहीं है मेरे साथ. सो नाउ द मार्स हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक वीनस, राइट, और वीनस अभी मार्स होने लगा. इट्स ऑल जम्बलिंग नाउ. Men, women have started behaving like men, which is absolutely fine, great, congratulations. या neck to neck बाहर जाके काम कर रहे हैं, पर मर्दों को अभी समझ भी नहीं आ रहा कि हम क्या करें. फिर मैं जो कर रहा हूँ वो औरत भी कर रही है, तो अभी मेरे को क्या करना है. सो यहाँ पे एम्पैथी, कंपैशन, राइट, कि नो, टू गो बियॉन्ड जस्ट कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ मनी. तो यहाँ पे आई थिंक मर्दों को अपग्रेड करना है. औरत अपग्रेड हो चुकी है, राइट. प्रॉब्लम आ रहा है मर्दों में, या, और ये मैं काफी 2-3 बुक्स में मैं सीखा हूँ. सो यू नो वेयर यू हैव टू बी मोर लाइक अ वुमन नाउ. I'm not talking from a hormonal point of view, right? Where आपको भी you have to contribute emotional support देना, या बच्चों को माँ की तरह प्यार देना. अभी बस बाहर जाके ये वो ईगो को कम करना, बिकॉज मर्दों में ईगो होना इज एवोल्यूशनरी. तो वहां बाहर जाके शिकार करना, मार के लाना, दैट एक्सपांडेड द ईगो, क्योंकि वहां पे इट्स ऑल टेकिंग रिस्क लिया, मैं जीत के आया आज, मेरा ईगो बढ़ गया. Whereas women were evolutionarily more of compassion, empathy, क्योंकि बच्चों को संभालना है, राइट, खाना बनाना है, शेयर करना है, मैं लास्ट में खाऊंगी, सबको खिलाने के बाद मैं खाऊंगी. पर अभी सब चेंज हो गया है, राइट. मर्द को बस पैसा फेंक के उसका फर्ज पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो बीवी भी कर रही है. एंड आई थिंक ये सब चीजें, आई थिंक, आई डोंट नो हाउ टू अपग्रेड द मैरिज इंस्टीट्यूट, आई डोंट नो रियली. तो उसमें एक सोल्यूशन दिया कि सबैटिकल, कि अगर आपके 4 साल शादी को हो गए ना, 6 महीने का सबैटिकल लो, अलग रहो, खुशी खुशी, एंड देन चेक कि क्या क्या हो रहा है. am I missing her, am I missing him, स्कैरसिटी क्रिएट करो, क्योंकि रोज वही चेहरा देख के फिर वो झगड़े और बढ़ रहे. दिस इज नॉट अ 100% सोल्यूशन, आई नो, इट्स अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन, बट एक सबैटिकल करके एक सोल्यूशन उसमें है, which can could be a new thing, because divorce rate has become so common. अभी तो शर्म भी नहीं आती किसी को बोलने को कि मेरा 1 बार डिवोर्स हुआ है, मेरा 2 बार डिवोर्स हुआ है. बट हाई टाइम टू थिंक ऑन दिस, कि कुछ तो चेंज लाना है इसमें. एंड दैट बुक क्वेश्चंस दिस अबाउट मैरिज. आजकल तो सब लोग खोल के बोल देते, कोई भी अब छुपा के नहीं रखता अपना बात. Why और I'm divorced, मुझे इसमें कुछ पाने की जरूरत भी नहीं. I'm happily married to books now. I have a question. Yeah. Manjeet here. Yeah, Manjeet. These days, I have seen, many CAs. They are means from the CA background, but they have come into this means coaching. They have become coach and like motivational speaker. So this change, I mean, what I feel is like they do such a means intensive study, and they are coming to this means other jobs or other type of means professions. So how do you see this? Like you also you are a CA, but you are better than CA, right? So I got it. I how got you the question. yeah Yeah, I think it's a very, very relevant question, and I'm glad you asked this. See, मैंने एजुकेशन को कैसे देखा होगा, शायद जो भी डाइवर्सिफाइड सी वो भी उन्होंने ऐसे देखा होगा कि पहले कैसा था कि जो हमारी डिग्री है, फिर वो डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो उसी में करना है, क्योंकि चलो अभी डिग्री लिया है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ एंड ग्रो. वहां पे फिर, बट वी ऑल हैव सम मल्टीपल पैशंस. भले वी मे नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच स्किल, बट वी हैव मल्टीपल पैशंस ना. तो उसको फर्टिलाइज करने का मौका नहीं था.
Abhi because of internet and social media, where creating something has become easy. Creating a video, creating a book, ebook, कुछ भी. Creating an app has become so easy. Non coding की भी जरूरत नहीं है आजकल. वो AI बना लेता है ऐप को. इतना सब easy हो गया to produce something. तो why not look at education as a cushion, as a safety net to fall back, okay, and try something new that nobody has tried. And if that fails, चलो सीए की डिग्री तो है ही, नौकरी तो कहीं नहीं जाएगी. आज एक अच्छी डिग्री, फॉर एग्जांपल मैं सीए का बात कर रहा हूँ कि मुंबई जैसे शहर में 1 लाख रुपया पगार एक सीए के लिए तो आराम से मिल जाएगा. वो मुझे पता है. That gives me the confidence to take risk and try something that nobody has tried till now, and work on my multiple passions. For example, I love speaking. I have a hidden teacher within me. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, पहले मैं सीए के स्टूडेंट को सिखाता था, फिर मुझे लगता था कि सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या है टीचर्स की, कि वही चीज हर साल सिखाओ, वही डेबिट क्रेडिट और वही ऑडिट और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वही कॉस्टिंग. बट अगर मैं अलग अलग चीजें सिखाऊं तो मॉन्कुस होल्डिस फरारी, होल्ड मी टाइट, द सेकंड माउंटेन, फिर मुझे भी मजा आएगा. एंड आई एम केटरिंग टू माय वन ऑफ द सीक्रेट passion called teaching. I'm a different kind of teacher. Got it? Then I'm also I was fascinated by technology. तो मैंने ऐप बनाया. समझा कैसे? I love traveling. So I started saying yes to all the public talks. क्योंकि मुझे जाके बातें करना, ट्रैवल करना पसंद है. So I've customized my career to tap into all my छोटा desires, सपने, जो भी है ना, कुछ भी बोलो, पैशन बोलो, सब सपने मैंने पूरे किए थ्रू एक एक्सक्यूज है. ये बुकलेट जस्ट एक बहाना है. वो कुछ भी हो सकता है. वो टॉयलेट पेपर हो सकता है, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ऐसे शेप करो उसको कि आपके जो पर्सनल बचपन के जो इंक्लिनेशन थे ना, किसी को फोन वो टीवी खोल के देखना को पसंद था, जस्ट बिकॉज वो अभी सीए हुआ है तो वो टीवी नहीं खोलेगा क्या? फाइंड सम कॉम्बिनेशन and customize it. Now, career is not there on naukri.com. You can customize your personal career. अभी मेरे जैसे करियर भी बोल रहा हूँ, क्या करियर भी नहीं बोल सकते मेरे जैसे काम को, right? So I think this is what we have to use education this way. फिर क्या सीए और क्या बुकलेट, मुझे खुद को पता नहीं कि मैं कौन हूँ. I'm just a stupid reader. और अलग अलग जैसे no, how nicely she introduced me. I loved it. हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है. बिकॉज एक ही चीज में इतना घुसा हुआ कि बुक्स और रीडिंग में कैसे नए नए चीजें लगता है. कीपिंग माय मल्टीपल पैशंस इंटैक्ट. गॉट इट? जैसे ओला वाले को शायद बोलना पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी सामने आया नहीं. हमारे मिस्टर अग्रवाल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑन, इट डजंट लाइक पब्लिक स्पीकिंग. अगर मैं वो रहता तो शायद मैं बुकलेट ऐप बना के छोड़ देता. मैं ऐसा नहीं आता टॉक्स पे, बिकॉज मुझे बोलना पसंद नहीं होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको जो पसंद है ना, वो जबरदस्ती उसको कॉम्बिनेशन बना के उसका पैकेज बनाओ, एंड देन यू विल बिकम अ रेयर मिक्स, एंड ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड. Thank you so much. Wonderful. Yeah. Passion is the key. Passion is the key. And we all have multiple passions. एक ही नहीं होता है, राइट? वो उसको जाने मत दो. बचपन के आपको बचपन में क्या पसंद था, आपके माँ बाप को पूछो, दोस्तों को पूछो कि ऐसा क्या था चीज जिसमें आई यूज्ड टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, कि माँ को बोलना पड़ता था बेटा चल खाना खाने, क्या कर रहा है तू? जस्ट बिकॉज यू हैव ग्रोन अप, यू डोंट हैव टू गिव देम अप. Yeah, it's 8:45. Yeah. Thank you so much. I'll take one more last question. Then I'd like to ask one more thing about like IBL. You launched beautifully, like Indian Book League. So what is that, and how we all can be accommodated? Oh yeah. So just tell me, if I remove the concept of runs from cricket, and cricket will be the most boring thing in the world. We think we love cricket or any sport because of the bats and balls and because of the fancy things. No. Okay. कुछ भी चीजों में अगर आप गेमिंग एलिमेंट लाओगे ना, it suddenly becomes exciting. Why going to the gym is boring? Why reading over a period of time becomes boring? Because there is no gaming element. Now, what are gaming elements? Numbers, comparison,
and win-loss status. These three things. Numbers आएगा तो अपने आप कंपैरिजन आता है, राइट? एंड कंपैरिजन आता है तो कौन जीता कौन हारा. अब जैसे आप योगा करते हो रोज, तो योगा 1-1.5 घंटा योगा किया तो आपको समझ में आता है कि मैं जीती या हारी? ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि अरे मुझे 10 में से 9 मिले आज योगा में, ऐसा होता ही नहीं है. इट्स ऑल सब्जेक्टिव ना. एंड सो द मोटिवेशन फेड्स अवे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो एवरी नॉन गेम कंटेक्स्ट में आप गेमिंग एलिमेंट्स ला सकते हो. और मैंने ऐसे कुछ प्रयास किया है, 2.5 साल से इस पे काम कर रहे हैं. बहुत उसमें 4.5 लाख मेरे उसमें इन्वेस्ट हो गए. तो अब मुझे उसको फ्री कर रखना था, पर फाइनेंशियली वायबल नहीं है. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कुछ पेड कर रहा हूँ, और उसका मैंने 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी रखा है, जो मेरे नेचर के बहुत अगेंस्ट है. आई एम वेरी एंशियस. 15 अगस्त को पहला IBL सीजन 1 लॉन्च हो रहा है. सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इट. मजा आएगा. क्रिकेट खेलना है आपको, मतलब मैदान में जाके नहीं, बुकलेट ऐप में खेलना है. IBL सेक्शन होगा. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल किया है मैंने. तो आप एक टीम बनाई जाएगी. यू विल बी अलॉटेड वन टीम. ओके, वो अल्गोरिदम टीम बनाएगा. 10 लोगों की टीम रहेगी. ऐसे 10 टीम्स रहेंगे, और एक टीम को वो मैच रहेगा 24 घंटे का. 24 घंटे के अंदर आपको वो जो बुकलेट दिया है वो आपको पढ़ना है या सुनना है. एंड यू विल गेट 6 balls टू प्ले. और in 6 minutes you have to play 6 balls. What are those 6 balls? 6 questions based on the summary that you read. If you give one right answer, you hit a sixer. If you give 3 wrong answers, you are out. आप आगे के बॉल्स खेल नहीं सकते. और ऐसे आपने सपोज 50 रन बनाए, आपके टीम मेंबर ने 70 बनाए, ऐसे मिलके सबने मिल के आपके टीम ने 300 रन बनाए. सामने वाली टीम सेम बुक पे खेल रहे अपने अपने डिवाइस पे, अपने अपने मोबाइल पे. उन्होंने बनाया 350, आपने बनाया 300. तो आप हारे, वो जीते. आपको मिला 0 पॉइंट, उनको मिला 1 पॉइंट. और लीग मैचेस हो गए. जैसे 10 टीम है तो हर एक टीम एक दूसरे के साथ खेलेगा. जो जीतेगा वो ऊपर ऊपर जाएगा. फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल. फिर मैं कुछ सरप्राइज गिफ्ट दूंगा आपको. मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, कौन सबसे ज्यादा सिक्सर मारा, उसको भी कुछ हम ये दिखाएंगे. बेस्ट रिकॉर्ड्स किसने बनाए. सो बहुत बहुत मजा आएगा. और आई प्रॉमिस, ये 1 महीने के सीजन में यू विल एंड अप हैविंग नॉलेज ऑफ 20 to 25 बुक्स. आई प्रॉमिस दिस. कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये तो होगा. यहाँ तो करना क्या आपको. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस बिनल, बिकॉज इट्स परफेक्ट टाइम. 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे को ये पहली बार हो रहा है. आई वांट टू हैव दिस एज अ नेशनल मूवमेंट, एंड आई एम श्योर आई डू इट. बट इट्स एन एक्सपेरिमेंट. ओके, इट्स अ बिग एक्सपेरिमेंट. किसी ने अब तक किया नहीं है. तो आपको बस मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करना है, 9594. Vinal, if you could write it please on my behalf. 9594 7000 9594 7000 77. I repeat, 9594 7000 77. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करो. एंड 100 रुपीज ये जीपे नंबर भी है. You have to pay 100 rupees. Please write IBL. Okay, you have to install Booklet app. Okay, आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में मिल जाएगा. Please install it and send me the GPay screenshot on the WhatsApp number and email ID with which you register on Booklet app. ठीक है. Booklet app में जब आप रजिस्टर करोगे या लॉग इन करोगे तो जो ईमेल आईडी यूज होता है ना, वही आपको मुझे शेयर करना है. बाकी लीव इट टू मी. आई विल गाइड यू थ्रू वीडियो से कैसे खेलना है, रूल्स क्या है, सब डिटेल में बोलूंगा. ऑलराइट. और 15 अगस्त के पहले वो IBL सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको खेलना है 15 अगस्त से. ऑलराइट. उसके पहले भी मे बी वी विल हैव अ सेशन डिटेल में. 15 अगस्त को जब हमारा ये इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन सुबह खत्म होगा, मे बी विल मीट वंस ऑनलाइन एंड देन आई विल गाइड यू वंस अगेन. सो प्लीज नोट दिस नंबर. I really want you to participate to help me with this experiment. Okay, कि कुछ अगर glitches आए तो प्लीज मुझे बताना. जैसे मैच अबेंडन होता है ना बारिश की वजह से, तो इधर बारिश नहीं होगी, कुछ ग्लिच आएगा तो मे बी एक मैच अबेंडन हो सकती है. तो उससे मुझे समझेगा और फिर रिफाइन होगा ये. ऑलराइट. सो ये फर्स्ट सीजन है. आई एम रियली एंशियस बिकॉज पहली बार मैं कुछ पेड कर रहा हूँ और मुझे आदत नहीं है कुछ बेचने की. आई एम अ वेरी बैड सेल्समैन. And There are 2 hands raised. One is of Siddhi Dongre and Riti Bansal. What's the time now? Because I have given time to another. Dubai का एक सेशन है मेरा. Yeah, Siddhi has been waiting for a long time. Okay.
Okay, Siddhi, this is the last question. Okay, let Siddhi talk. Hi. Hi, Hi, Siddhi. Dada. Hi, tell me. Well, I've been waiting for a long time, but whenever I'm about to ask, someone just comes and asks, and I'm like, I'll appreciate their curiosity because many of the people are meeting you for the first time, and I'm happy and glad for everyone, so I was waiting. It's a pretty simple question. I'm sure you've answered this type of question like in every book meeting. In every book meeting, like people ask you, "What's your favorite book? What's your favorite book?" And the answers change every week. I know, but I want to ask a question that just randomly popped up in my mind when you were talking about the titles of books, like the Atomic Habits and everything. I wanted to ask you, what was that one particular book that it took you so much time to understand? There must be some book that you didn't understand, so that you had to read it one or two or three times for you to finally grasp the meaning or the final goal, the understanding, the purpose to write that book, what the author wanted to say. So, what was that book that Wow. was so Wow. Wow, this is a very different question. Nobody has asked me till now, and I really loved your accent, Siddhi. Beautiful accent you have. The Road Less Traveled by Scott Peck. The Road Less Traveled. The name is very general, I know, but it's such a deep book. एक तो उसका font बहुत छोटा है, so I had to read it twice for that reason. Second, I think it was like a Bible. Again, he's a psychologist. He's a counselor. So, most of the psychologists, they understand human behavior so nicely. And I had to read it thrice. Can you believe? Thrice. Just to understand it properly. Next level book है. I wish I would write मतलब मेरे जो अगला अगर कुछ बुक आने वाला है तो it will be a simplified version of that book. उसको मेरे को सिंपल करके आपके पास पहुंचाना है. Yeah. So I think the road less traveled. उसकी समरी मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे आया नहीं मेरे को. Sorry. बहुत मुश्किल है उसकी समरी बनानी. ऐसा कभी होता नहीं है मेरे साथ. So yeah, the road less traveled. That's the book. Toughest book for me. It was the real test of booklet guy. That's Yes, nice. That's all naturally I it's a wanted. road less traveled. Yeah. Okay, मजा आ गया. Thank you so much for bearing with me for last 1.5 hours. बहुत पेशेंस से आपने सुना, बहुत गौर से सुना. Nobody was getting distracted. Nobody touched their mobile phone. That means it is my victory. Thank you so much, Amrit sir, for this amazing, beautiful audience. And we are blessed to have you. And with a community of, 75, 76 readers, we are super excited for IBL as well. So you can try everything, and we will be supporting you in every possible way. And it's a very noble and beautiful cause. Thank you so much for this wonderful. Welcome. Thank you so much. मेरी किताब कुछ लोग पूछ रहे थे कि किताब कहाँ मिलेगी, तो मेरे जो नंबर है उसी पे पूछो आप कि I want to buy the book. I'll share the link. I'll deliver the book on WhatsApp only. तो वो भी आप पूछ सकते हो WhatsApp पे. Yeah, please save the number and be in touch with me. Treat me as your reading friend, reading partner, who will hold your hand throughout the reading life. So thank you so much. Happy reading. Yeah, and happy playing with books from 15th August. Chalo. Bye-bye. Hi, sir. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Bye-bye. Amrut. Thanks for being here, spending the evening today with us. Yes, thank you so It's a much. pleasure. Bye-bye. Thank you so much, Thanks a Amrit. lot. Thank Thank you you. so Thank much. you very much. Bye-bye. Thank Bye-bye. you much. Bye. Thank you. Bye-bye. Good Wonderful night. session, Amrit. Thank Bye. you. Bye. So much. Thank you. Thank you so Read much. 2 pages before going to bed. Bye-bye. Sure. Yeah, Sure, sure. sure. Yes, Thanks. sure. Sure, we will. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.